Let's start the another topic, basic statistical description of the data. This topic gives the information how we can identify the statistical nature of a particular data. So for identifying the properties of the data or to identify, to highlight the noise or outliers, we must know what is the statistical nature of a particular data set. There are three methods for identifying the statistical description of a particular data set. First one is measure of central tendency, which helps in measuring the middle or the center of the data distribution. जो भी आपका data set का distribution है, उसका middle और center evaluate करने के लिए हम measure of central tendency use करते हैं. We can find out the central tendency using mean, median and the mode. With this, we can identify where most of the values exist for that particular data sets. Second method is the dispersion of the data, which says how data is spread out, and we can measure it with the help of range, quartiles, interquartile range, 5-number summary, box plots, variance and the standard deviation of the data. And this is helpful in identifying the outliers. This method is helpful in identifying the outliers. Third method is the graphical data presentation softwares. There are various methods through which you can represent your data sets and identify their statistical descriptions. They are bar charts, pie charts and the line graphs. So data summarization and the distributions could be drawn with the help of quartile plots, quantile plots, histogram and the scatter plots. Let's discuss them one by one in detail. First, we'll cover the measure of central tendency. This I had already told you, the central tendency consists of mean, median and mode. So let us consider one attribute known as the salary attribute and the observed values as x1, x2, x3 and xn. They are referred as the data set, क्योंकि आपने किसी एक particular salary value column जो है, attribute जो है, dimension जो है, इसके लिए existing values को consider किया है. So we will say them as data set values. अब अगर हम इन्हें plot करेंगे, then only we can find कि where these values fall. So plotting the dataset values helps in identifying the nature, and we can easily identify where the nature exists. So first is the mean method, which is the effective numeric measure. This is an effective numeric measure which is used in calculating the center of a data set, also known as the arithmetic mean. So it is very easy to compute. We'll summarize all the data set values and divided by the total number of elements gives the mean. Say this is an example given. एक salary attribute को दिया हुआ है, तो first what I'll do, I am arranging, you people arrange all this particular values of a salary. It is already in the $1,000 its units. So arrange them in the increasing order and simply sum up them and divided by the total number of elements. They are 12 in the numbers. So this gives the total mean. So in this method we can identify what is the mean of a particular data sets. अगर हर एक पर्टिकुलर सैलरी के रेस्पेक्ट में वेट दिया हो, फॉर एग्जांपल 30 के साथ वेटेज वैल्यू दी हुई है से 5, 36 के रेस्पेक्ट में वेटेज वैल्यू दी हुई है 2, सो सिंपल मीन डज नॉट वर्क. देन वी विल यूज द वेटेज अरिथमेटिक मीन और वी ऑल्सो से इट एज वेटेज एवरेज. तो उसमें सिंपल फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, इंडिविजुअल एलिमेंट से 30 है, 30 विल बी मल्टीप्लाइड बाय the respective weightage value and then sum up for rest of the values divided by the total number of the weights. Sigma I to the value 1 to n wi into xi divided by the total summation of the weight. This is the average weightage. You people get the numericals over these measure of central tendency. What is the main drawback and what are the issues with the help of this mean is they are very sensitive to the extreme or the outlier values. ठीक है, so extreme values may also corrupt the data set. For example, क्यों कैसे करप्ट कर लेते हैं, जैसे इफ यू से कि एवरेज सैलरी क्या है एम्प्लॉयज की, तो एवरेज सैलरी इज फाइन, बट अगर इसमें 4-5 जो एम्प्लॉयज हैं, दोज हु आर दी मैनेजर और जो हाईएस्ट लेवल पे हैं, अगर उनकी सैलरी बहुत हाई होगी तो पूरे डेटा सेट की जो एवरेज मीन हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी. तो वो चेंज हो गया बिकॉज जो एक्सट्रीम पॉइंट्स थे, जो आउटलायर्स थे, उनकी वैल्यू हाई होने की वजह से एवरेज मीन जो है चेंज हो गया.
सिमिलरली अगर आप अभी हमारा रिजल्ट आउट हुआ है एंड आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज स्कोर ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो इसमें कुछ वैल्यूज जो है, कुछ बच्चों की वैल्यूज जो है एक्सट्रीम कॉर्नर पे बहुत कम आई, अगर से मान लो बहुत लो वैल्यूज आ गई, तो मेरी पूरी क्लास का एवरेज डाउन हो जाता है। इसलिए जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं दे हैव अ वेरी इम्पैक्ट। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? हम क्या करते हैं, हम ट्रिम कर देते हैं। तो जो हमारी एक्सट्रीम बाउंड्रीज होती हैं वी यूज टू ट्रिम देम, बट दिस इज नॉट एन इफेक्टिव मेथड, क्योंकि आप मैक्सिमम वैल्यूज को अगर ट्रिम कर दोगे तो आपके डेटा सेट का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा एंड दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन। जैसा डिमांड होता है दैट टाइम विल बी यूजिंग। नेक्स्ट इज द मीडियन। मीडियन आपके स्क्यूड डेटा या फिर असिमेट्रिक डेटा सेट के लिए यूज किया जाता है। मीडियन इज अ बेटर सोल्यूशन। मीडियन सेज कि मिडल वैल्यूज ऑफ द सेट ऑफ ऑर्डर्ड डेटा वैल्यूज is termed as the median. We divide the set into two halves. With the help of median, we can equally divide a particular data sets into the two equal halves. हम इन्हें अप्लाई कब करते हैं? जब हमारा ऑर्डर्ड वैल्यूज होता है या फिर हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज होती है। अब हमारे जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो ऑड भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं। अगर मेरी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड है तो मैं जो मिडल वैल्यू है उसको कंसीडर करूंगी एज अ मीडियन, और अगर मेरी वैल्यू इवन है तो मैं जो मिडल की दो वैल्यूज है उनका एवरेज लेके अपने डेटा सेट का मीडियन कैलकुलेट कर लूंगी। तो मैं अगर प्रीवियस एग्जांपल की बात करूं तो प्रीवियस एग्जांपल में अगर n मैं लेके चलूं 12, टोटल सारे के सारी वैल्यूज लेके चलूं, तो उसमें से मैंने क्या किया, जो 12 थी इवन थी तो मिडिल टू वैल्यूज का एवरेज निकाल दिया। सो दैट गिव्स द मीडियन फॉर दैट पर्टिकुलर डेटा सेट वैल्यूज। और अगर मैं फर्स्ट 11 वैल्यूज को लेकर के चलती हूँ देन इट इज एन ऑड, तो ऑड में जो भी मेरी मिडिल वैल्यू आ रही है 52 वो मेरी मीडियन कहलाएगी। अगर उस वैल्यू एग्जाम्पल को देखना है तो हम देख सकते हैं। अगर मैं टोटल वैल्यूज को लेकर चल रही हूँ 12, तो यहाँ पे मेरी ये दो वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मेरी ये दोनों वैल्यूज जो है दिस विल गिव्स दी एवरेज। और अगर मैं सिर्फ 11 लेकर के चलती, 70 तक वैल्यूज लेकर के चलती, तो ऑड होता जिसमें कि मेरी मिडिल वैल्यू 5 के बाद वाला एलिमेंट जो होता वो हेल्पफुल होता फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन। So problem is it is very complex to calculate the or to find the middle value for the large size of the data sets. तो हम इस सिंपल मेथड के थ्रू तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो दिस इज अ सिंपली प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज द मोड। मोड सेज वो डेटा वैल्यूज जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली डेटा सेट में अकर हो रही है, तो पूरा डिस्क्रिप्शन जो आप स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन जो डिपेंड करता है वो उस पर्टिकुलर वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो वी कैन फाइंड आउट द स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड देन इन दिस विद द हेल्प ऑफ मोड। जितने भी क्वालिटेटिव और द क्वांटिटेटिव अरिथमेटिक ऑपरेशन है दे सपोर्ट्स मोड। अगर एक से ज्यादा वैल्यूज हैं जो फ्रीक्वेंसीज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अकरिंग ज्यादा है तो हम उनको उसके अकॉर्डिंग नेम प्रोवाइड करते हैं। यूनी मॉडल अगर सिर्फ एक ही वैल्यू है जो एक से ज्यादा बार अगर हो रही है तो वहां पे एक ही मोड होगा। अगर एक से ज्यादा वैल्यूज हैं जिसमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ज्यादा है, तो मैंने 52 है वो भी 2 बार आ रहा है, 70 है वो भी 2 आ रहा है जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया है, तो इस केस में जो मेरा मॉडल कहलाएगा वो बाय मॉडल कहलाएगा। सिमिलरली अगर 3 ऐसे एट्रीब्यूट्स होंगे जो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं वो सिमिलर है, देन इट इज ट्राई मॉडल। So simply we can say data sets with 2 or more modes is a multi-model. If each value occurs once in a data set, then there is no mode. So you should keep in the mind कि अगर हर एक उसमें एक ही एक है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो उस पर्टिकुलर डेटा सेट का कोई मोड वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। देयर इज अनदर मेथड। अगर यूनी मॉडल न्यूमेरिक डेटा मॉडल है तो आपके पास आप इस तरीके से भी उसका मोड कैलकुलेट कर सकते हो। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। नेक्स्ट मेथड इज द मिड रेंज। मिड रेंज कहता है कि जो लोएस्ट वैल्यू है और जो हाईएस्ट वैल्यू है उनका आप एवरेज निकाल दो, दैट गिव्स द मिड रेंज। नाउ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर डेटा का है तो आपका कर्व कैसे ड्रॉ होगा। अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपका कर्व इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस पे मैंने प्लॉट किया है। अगर मेरा डेटा सेट एकदम सिमेट्रिक है तो जो मीन मीडियन मोड है वो मेरे एकदम सेंटर पे लाई करेंगे एंड दे बोथ आर इक्वल। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। अगर मेरी डेटा सेट वैल्यूज इस तरफ है टूवर्ड्स सी दिख रही है इस तरफ है, तो आई विल से दिस इज अ पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा सेट। और अगर ये जितनी इधर मूव करती जा रही है देन आई विल से इट इज अ नेगेटिवली स्क्यूड डेटा सेट। इस केस में here is my mode, this is my median and this is my mean। यानी मोड की वैल्यू कम है, उससे बड़ी मीडियन है, देन उससे बड़ा मीन है।
सिमिलरली अगर नेगेटिवली स्क्यूड डिस्क्रिप्शन होगा तो पहले मेरा मीन है, फिर मेरा मीडियन है, फिर उसके बाद मेरा मोड है. मीन्स मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड, यानी मोड की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है जब आपका नेगेटिवली स्क्यूड टाइप का डेटा सेट होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द मेजरिंग ऑफ डिस्पर्जन ऑफ द डेटा. आप डेटा का डिस्पर्जन की डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट हुआ है उसको निकालने के लिए देयर आर सम मेथड्स. फॉर एग्जांपल रेंज. First one is the range. Range means difference between the largest and the smallest. Next is the quantiles. First आपका ध्यान रखना है sorted increasing numeric order होना चाहिए. Pick any data point, कोई सा भी ले लो, and to split that distribution into the equal size. तो जिस particular data set की help से आप अपने distribution को equal size में break करते हो, that point is known as the quantiles. For example, ये अगर मैंने data plot symmetric data plot draw किया है, तो the 25th percentile is known as first quantile, 50th percentile of a complete data set is known as second quartile, which is also known as median, and 75th percentile of all the data set values is known as the third quantile. तो इस तरीके से मेरा पूरा data set जो है वो क्वांटाइल्स में, 3 क्वांटाइल्स में डिवाइड हो जाता है. टोटल 4, क्योंकि और उसमें रिक्वायर्ड तो 3 ही होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो फर्स्ट क्वांटाइल 25% of the total data set values, second quantile 50th%, which is also known as median, and the 75% of the median values. So this is a figure which gives a plot of the data distribution for arithmetic for attribute x. किसी एक x attributes को इन quartiles में उसने divide कर दिया है, 3 quartiles में distribution में, and each is divided into 4 equal size. So second quartile correspond to the median. There is another third method for calculating the dispersion is the interquartile range, which is calculated with the help of difference between the third quantile and the first quantile. So these are the methods for calculating the distribution. So we end up here. Thank you.